Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the online teaching of English Compulsory Semester 1 Associate Degree Program. This is the lecture 2 of the series of parts of speech, and in this part 2 we are going to see pronoun and its kinds. Let's first look at the etymology or origin of this word pronoun. Pro plus noun, these are basically two words from which this one word or term has been made. It actually came from Latin into English. And this in red color, we can see that how it was written in Latin language. And pro means for or in place of, and noun means name. So something which is in the place of name. So from Latin, it went into Middle French, and it was pronounced as pronoun. So since I know French, a bit of French, so I can pronounce it. So pro means for, nom means noun. So again, the same meaning for noun. And if we go further back, then pronouns and how in Greek language they are written like this. They are listed as one of 8 parts of speech. So if you remember the person Dionysius Thrax, that ancient Greek grammarian, he was the one who named these as pronouns. So from Greek, it went into Latin and then to French, and then finally came into English. And now we call the pronoun as a stand-in word or replacement for another noun. If you look at this paragraph, it's quite a big one, but I just wanted to give you an idea, and you have to tell me what's odd or awkward in this paragraph. That Mike and Morris lived in the same village. While Morris owned the largest jewelry shop in the village, Mike was a poor farmer. Morris and Mike had large families with many sons, daughters in law, and grandchildren. One fine day, Mike, tired of not being able to feed Mike's family, decided to leave the village and move to the city where Mike was certain to earn enough to feed everyone. Along with Mike's family, Mike left the village for the city. At night, Mike and family stopped under a large tree. There was a stream running nearby where Mike and family could freshen up. Mike and family. Mike told Mike's sons to clear the area below the tree. Mike told Mike's wife to fetch water, and Mike instructed Mike's daughters in law to make up the fire and started cutting wood from the tree by Mike. Mike and family didn't know that in the branches of the tree a thief was hiding. The thief watched as Mike's family worked together and also noticed that Mike's family had nothing to cook. Mike's wife also thought the same and asked wife's husband, "Everything is ready, but what will Mike and family eat?" Mike raised Mike's hands to heaven and said, "Don't worry, God is watching all of this from above. God will help us." Well, what's wrong in it? Mike, Morris, Mike and Morris, Mike's family. Mike was certain. Mike's family, Mike, so much. So, it sounds awkward, right? Why it sounds awkward? Because are there repetitions in it? Or is it stopping the flow of sentences? Think about it. Oh, yes, it does. The reason is because pronouns are missing. There are pronouns which are not there, and time and again we are repeating nouns, Mike and family, instead of saying they, he, her, them, his. So
all these are missing, right? So that is the reason it has quite an awkwardness in it. So pronouns are very important in written and verbal communication because they avoid repetitiveness and ensure a good flow of words. These two things pronouns are meant for. एंड ह्यूमरसली लेट मी टेल यू कि जब हीरो फेल हो जाता है फिल्मों में, जब कोई स्टंट करना होता है उसने, तो स्टंट मैन आते हैं जो हीरो लगते हैं पर हीरो होते नहीं हैं. तो ये प्रोनाउंस भी हीरो की जगह आके काम करते हैं और स्टंट दिखा के चले जाते हैं. सो दे सर्व एज स्टंटमैन दैट आर ऑलवेज रेडी टू रिप्लेस द रियल एक्टर्स व्हेन द एक्टर्स स्टार्ट टू वेयर आउट. यानी जब एक्टर्स काम नहीं कर सकते कोई एक्शन का सीन, तो स्टंटमैन आके करते हैं. ओके, दैट वाज जस्ट ऑन द लाइटर पार्ट. नाउ सो मेनी kinds of pronouns, starting from personal, then impersonal. These two I will write together, okay? In the coming slides, they will be together. Demonstrative, distributive, indefinite, reciprocal, reflexive and emphatic, relative, interrogative, possessive. So they are one, I'm counting them as one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if we count them as 1, then it will be 8 or 9, otherwise 10. Okay? So this is how, let's go to it one by one. Now when we say personal and impersonal pronouns, what it means. So first personal, look at these examples. And look at these in red. Okay. He plays with us. Now see, you, I, me, it. Now, if you look at this, then this is replacing a subject pronoun. It is replacing a subject noun. For example, if it was written, Ali plays with us. Now, us is at the place of the object. He is at the place of the subject. So when we replace the subject and the object nouns and replace some pronoun over there, then these will be called as personal pronouns. So they refer to some person. See? So last two examples we are going to discuss later, but first let me give you the idea that list of personal pronouns. If you can see in your junior classes, you will definitely be told that there are some subject pronouns. Why I'm calling them subject pronouns? क्योंकि ये शुरू में आते हैं, ये किसी एक्शन करने वाले के लिए होते हैं. सो आई, जब हम आई कहेंगे कि आई रिस्पेक्ट माई मदर, तो आई इज डूइंग सम एक्शन. लेकिन जब हम कहते हैं कि दे ऑल्सो लव मी, अब आई जो मी में तब्दील हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाके यहाँ पर आई नहीं, ये नहीं होगा कि दे ऑल्सो लव आई. हम कहेंगे दे ऑल्सो लव मी. अच्छा, सेम इज द केस ओवर हेयर. यू गो टू द कॉलेज डेली, सो यू इज एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. तो अगर आप इधर देखें तो एक लिस्ट है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो आई, यू, ही, शी. अच्छा, अब इट जो है ना, सिंस इट डज नॉट डिनोट अ पर्सन, अब ये किसी लिविंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते हम, स्पेशली मतलब पर्सन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते. तो जब हम तो इसको हम इम्पर्सनल कह देते हैं. मीन्स कि इट डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्सन, तो हम इसको कहते हैं इम्पर्सनल. तो इम्पर्सनल का मतलब है विच इज़ नॉट फॉर द पीपल और पर्सन. तो जैसे हम कहते हैं इट इज़ अ नाइस वेदर, ठीक है. इट अगेन किसी नॉन पर्सन चीज़ की तरफ और इम्पर्सनल चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है. हैव यू मिस्ड इट, इट कोई चीज़ होगी, कोई वाक़या होगा, कोई इवेंट होगा. सो ये नहीं है कि ये कोई किसी बंदे की तरफ इशारा नहीं है. सो इट विल बी इम्पर्सनल, ठीक है. सो सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होंगे? आई, यू, ही, शी, इट. और जब हम उनका प्लूरल बनाएंगे तो आई से वी में बनेगा, यू ही रहेगा, ही, शी, इट विल चेंज इनटू दे. ऑल दीज थ्री विल चेंज इनटू दे. अब ऑब्जेक्ट ये है जो
वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। वर्ब के बाद जो नाउन को हम रिप्लेस करते हैं उनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे मी, यू, हिम, हर। अच्छा, इट वैसा ही रहता है, जैसे इट यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, सब्जेक्ट में भी वही है, ऑब्जेक्ट में भी वही है। लेकिन मी, आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, यू विल बी यू, and you, so it's you both ways, okay. And he, she, it, how we are going to say an object, him, her, it, and they will change into them। जैसे हम कहते हैं कि I have told them, तो told they नहीं होगा, told them, ठीक है। so this is how the personal, pronoun and impersonal, सिर्फ ये फर्क है कि it is not used for people। okay, let's go ahead। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि जैसे पोजेशन आप कहते हैं, ठीक है। पोजेशन मीन्स कि बिलोंगिंग टू समथिंग, ओनरशिप। सी, जैसे माई पेन, तो माई एंड पेन। अच्छा, अब नाउ देयर इज एन इशू। क्यों मॉडर्न ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये प्रोनाउन जो है ये ठीक बात नहीं है, उसको नाउन में ही डाल दें। सो जो इस तरह की चीज़ है ना, तो वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं कि जी पेन नाउन है और यहाँ इसको आप प्रोनाउन कह रहे हैं, तो नाउन और प्रोनाउन इकट्ठा कैसे आएंगे। तो उन्होंने इसको डिटर्मिनर में डाल दिया। अगर आपको याद हो, सो इन माय प्रीवियस लेक्चर आई गेव यू द टर्म डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर उसमें कहते हैं कि जो नाउन से पहले उसको डिटर्मिन करता है, जैसे यहाँ पर ये पोजेशन डिटर्मिन कर रहा है। तो मॉडर्न ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये प्रोनाउन नहीं है, इसे हम कहेंगे डिटर्मिनर, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज जो ट्रेडिशनल में ये प्रोनाउन ही है। लेकिन है तो गड़बड़ है ना, कि देखें नाउन और प्रोनाउन इकट्ठा कैसे आ सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये कैसे हो गया कि ये दोनों। एनीवे, अच्छा, देयर इज अनदर नेम ऑफ दिस पोजेसिव प्रोनाउन, और इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। देखें, एडजेक्टिव ये फिर भी समझ आता है, क्यों कि नाउन को मॉडिफाई, नाउन के बारे में कोई भी बात जो करेगा, उसकी क्वालिटी बताएगा, तो उसको तो हम हमेशा एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर बेसिकली दे टेल यू समथिंग अबाउट नाउन। तो ये किसका पेन है, माई पेन, तो पेन को के बारे में कुछ भी बता रहा है, तो दैट शुड बी पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। एनीवे, तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि ट्रेडिशनल में इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन एज वेल एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। डी साइलेंट होता है, सो एडजेक्टिव्स। और मैंने आपको क्या बताया कि इन मॉडर्न ग्रामर दीज आर डिटर्मिनर्स। तो अब आप देखें सब्जेक्ट की यहाँ पर इस ये दोनों जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि दिस पेन इज माई पेन, अब रेपुटेशन नहीं करना चाहते, तो हम कहेंगे दिस पेन इज माइन, तो दिस इज ऑल्सो पोजेसिव। नॉट योर पेन, नॉट योर्स, तो रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए इफ वी आर गोइंग टू, अब ये जो एस लगाया ना हमने, इसके अंदर इसका मतलब है कि नाउन छुप गया, ठीक है। सो दिस पेन इज माइन, नॉट योर्स, तो ये भी पोजेसिव प्रोनाउन यानी पोजेशन बिलोंगिंग शो कर रहा है, और ये भी बिलोंगिंग शो कर रहा है। सो बोथ ब्लू एंड ग्रीन आर पोजेसिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। अब आप देख लें कि जो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं, मतलब कि जो बिफोर नाउन पोजेशन दिखा रहे हैं, बिफोर नाउन पोजेशन है, वो ये हैं माई, आगे एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, माई, योर, हिज, हर, इट्स, ये इम्पर्सनल है लेकिन पोजेसिव, इम्पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है, आर और आवर, देयर, ठीक है। अभी दूसरी तरफ देखें, ये इसी तरह से यहाँ पे फिर आपको उसके साथ नाउन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज माई लैपटॉप, देखिए माई के साथ तो आपने नाउन लगा दिया, बट माइन की साथ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माइन आप तब कहेंगे जब ऑलरेडी समबडी इज गोइंग टू मेंशन सम नाउन, ठीक है। योर्स, दीज ग्लासेस आर माइन, नॉट योर्स। दिस इज माई ब्रदर्स बुक, इट्स हिज। अब ये देखें, हिज जो है इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम ये कहते हैं ना हिज बुक, लेकिन हिज इस तरह से भी यूज़ होता है विदाउट एनी नाउन आफ्टर इट। अच्छा, ही ऑफर टू स्वॉप हिज कैमरा फॉर हर्स, हर्स का मतलब ये हो गया कि कैमरा इसमें छुपा हुआ है, ठीक है।
I'll show you to your room. Ours is next door. अच्छा ये आप खुद देख लें. So these are the examples of possessive pronoun. अच्छा जी. Now we will go to demonstrative pronouns. ठीक है. Demonstration का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताते हैं. ठीक है. तो इंग्लिश में when we have these four are going to be for some kind of demonstration or pointing out. ठीक है. जब हम कहते हैं कि this is my chair, अब this के बाद अगर लग जाता है कोई noun, तो फिर तो इसको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे. जैसे मैं कहती हूँ ना दिस चेयर इज माइन, तो दिस यहाँ पर फिर उस केस में एडजेक्टिव हो जाएगा. बट इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अच्छा हमेशा देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि सेम वर्ड कैन फंक्शन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. अब डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है. यहाँ पर इट इज रिप्लेसिंग अ नाउन, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव. तो 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. दिस, दैट, फिर उनका प्लूरल है दिस का दीज एंड दोज. लेकिन इसके बाद आपने कोई प्रोनाउन नहीं, सॉरी कोई नाउन नहीं लगाना. आपने ये नहीं कहना कि दिस चेयर इज माइन, फिर वो दिस चेयर विल बिकम दी दिस, वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है. और अभी जो मॉडर्न ग्रामेरियंस उसको डिटर्मिनर कहते हैं. क्यों कहते हैं? अगेन क्योंकि वो नाउन को डिटर्मिन कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, कैसा है, कितना है. सी, तो मॉडर्न ग्रामर में तो इट इज़ डिटर्मिनर. ठीक है. लेकिन हमारे पास अभी क्या नाम है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है. अब ये मैंने थोड़ा सा आपको फ़र्क डाल के बताया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, देखिए अब वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन इधर नाउन आ गया और यहाँ पर नहीं. तो दोनों में फ़र्क देखें. दिस चेयर, यहाँ पर दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, सॉरी, और यहाँ पर देखें इट इज़ वर्किंग एज अ प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है. ठीक है. सो दैट ये एग्जाम्पल्स आप ज़रा देख लीजिएगा. देखें दीज आर हर क्लोथ्स, अब दीज के बाद कोई नाउन नहीं है तो इसलिए ये प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव. लेकिन यहाँ पे देखें दीज क्लोथ्स, क्लोथ्स आपको नाउन है मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके. तो इस तरह दोनों को आपस में आप जब करेंगे कंपेयर, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओवर हेयर, दैट ओवर हेयर, दीज और दोज, और यहाँ पर उनका क्या फंक्शन है. ओके. अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव भी थोड़े से हैं. सो लेट्स गेट टू दीज. ये देखें रेड कलर्स में ये क्या कह रहे हैं? ईच ऑफ दीज बॉयज, आइदर ऑफ योर सर्वेंट्स, नाइदर, ईच, नाइदर, नाइदर. ओके. सो दे आर एक्चुअली ईच, आइदर, नाइदर. ठीक है. तो इनका क्या काम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का? इनका ये काम होता है कि दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. जैसे हम नहीं कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटते, तो हम एक एक को देते हैं. सेम इज़ द केस जब हम एक एक बंदे की तरफ इशारा करेंगे या एक एक चीज़ का बताएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा. सो दे आर ईच ऑफ दीज बॉयज, आइदर, नाइदर. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली 3: ईच, either or either, neither or neither. ठीक है. So these are going to be, so these are the examples. इनको please note कर लीजिएगा and then you should know कि इनको हम कहते हैं distributive pronouns. अच्छा what is indefinite pronoun? देखें as the word suggests, definite का मतलब होता है fixed. Indefinite हो गया which is not fixed, general. ठीक है. So general nouns जो भी होंगे, जैसे examples देखें कि nobody else offered. अब nobody देखिए ये तो कोई भी हो सकता है. there is no मतलब ये she, he, they, them, I, you, we, ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि वहाँ तो फिक्स हो जाएगा. we means we, but nobody अब ये जनरल टर्म है. अच्छा there is nothing interesting, no one believes them, everything was ready, was there anyone, would you like something, someone. तो जितने भी ये बोल्ड में आपको नजर आ रहे हैं they all are indefinite pronouns. Okay. So indefinite pronouns are
not know, these are the ones which are not known which nouns are used. So अब anybody ये सारे इधर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो गए हैं. सो जहाँ पर कोई नाउन की तरफ इशारा ना हो बल्कि जनरल सेंस में इशारा हो, so that is going to be called indefinite pronouns. So kindly note down all these examples with you under the same heading ताकि आपके पास एक notes prepare हो जाए, and then I will definitely give you worksheets. अच्छा जी. Now what is reciprocal pronouns? Reciprocal pronouns, जब हम कहते हैं कि हम किसी की बात को रेसिप्रिकेट करते हैं यानी कि म्यूचुअल, हम अगर वो मुझे कोई तोहफा दे मैं उसको तोहफा दूं, इफ़ शी हेल्प्स मी आई हेल्प हर, तो ये म्यूचुअल जो होता है उसे कहते हैं रेसिप्रिकेट करना, एक दूसरे के साथ उसी तरीके से तावन करना. सो रेसिप्रिकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं ये देखें, जहां पर वी मेंशन व्हेन द सब्जेक्ट यानी कि एक्शन करने वाला यानी कि डूअर एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पीपल. ठीक है, जैसे टॉम एंड सारा वर्क विद ईच अदर. ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के साथ. टॉम एंड सारा वर्क विद ईच अदर. अब ईच अदर किसको इशारा कर रहा है कि एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल. ठीक है, सो ईच अदर विल बी रेसिप्रिकल प्रोनाउन. और ये दो ही हैं. ठीक है, वन एंड अदर जब ज्यादा लोग होते हैं, मोर देन टू, टू के साथ हम कहते हैं आपस में. तो आपस में इन उर्दू, आपस में उर्दू में एक ही वो है आपस में, बट इन इंग्लिश व्हेन टू पीपल आर वर्किंग विद ईच अदर तो वो ईच अदर कहेंगे. अगर तीन या ज्यादा लोग हैं तो उनको हम कहते हैं कि फिर हम ये नहीं कहेंगे हेल्प ईच अदर, हम कहेंगे हेल्प वन एंड अदर. ये देखिए, वर्क इन अ ग्रुप, हेल्प वन एंड अदर. सो ईच अदर एंड वन एंड अदर, दे आर रेसिप्रिकल प्रोनाउंस, राइट. some more examples are coming up, आप देख लें. जहाँ पे दो लोग हैं, मैरी एंड जॉन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को दी. ठीक है, राम एंड मीना वर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी किसी तीसरे से बात नहीं कर रहे, आपस में कर रहे हैं. वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स, द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड. अब ये ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, राइट, दे आर नॉट टू. वन एंड अदर, सो मोर देन थ्री we will use three or more than three, we will use one another. Okay, so ये कितने हो गए? Reciprocal pronouns are two, each other and one another. All right, please note down all these examples. Well, a bit of the problematic, I would say, in a sense, because both are they look the same. Okay, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक. इम्फेटिक को हम इंटेंसिव भी कहते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्शन आप देखें, जब मिरर में अपना कोई रिफ्लेक्शन देखते हैं तो आप खुद को खुद नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह जो प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं. जैसे हम कहते हैं कि जेन कट हर सेल्फ विद अ नाइफ, यानी किसी और ने नहीं काटा, उसने खुद को खुद ही काट दिया. ठीक है, यानी किसी और ने एक्शन जब नहीं किया होता और सब्जेक्ट ने खुद ही एक्शन किया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यानी कि जो नाउन कर रहा है उसी का रिफ्लेक्शन वापस आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट वही होता है. राइट, सो इसकी पहचान ये है, बोथ दीज रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक, दोनों के आखिर में सेल्फ आता है. ठीक है, अभी मैं आपको, आई विल गिव यू अ लिस्ट. Meanwhile, let me explain कि emphatic या intensive pronouns क्या होते हैं. An intensive or pronoun is a pronoun that adds emphasis. देखिए emphatic यानी कि emphasis, जोर डाल के जब हम कोई बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैंने खुद ये काम किया है, खुद. Like in Urdu, the translation will be खुद. देखिए उसने खुद ही अपना नुकसान कर दिया, खुद ही. सो दिस खुद ही इज एक्चुअली फॉर द स्ट्रेस. तो इंग्लिश में उसको हम क्या करते हैं? सेल्फ लगा देते हैं उस प्रोनाउन के साथ. कैसे? ये देखें. सी, एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्स देखने में एक ही जैसे हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे, लेकिन इनकी पोजिशन डिफरेंट है. ठीक है, पोजिशन कैसे डिफरेंट है आप ये देखिए.
अब जो रिफ्लेक्सिव होगा ना, यानी जहां पे ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन आएगा, कैसे है? द बॉय मेड हिमसेल्फ ब्रेकफास्ट, यानी उसको किसी और ने बना के नहीं दिया, उसका उसने अपना ब्रेकफास्ट बनाया है। तो द बॉय और ये हिमसेल्फ, ये देखिए एक्शन, ये बॉय इज द सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, और जो जो एक्शन जिस पर हो रहा है वो भी खुद ही है, ठीक है? तो क्या होगा कि इट विल बी रिफ्लेक्सिव। लेकिन इंटेंसिव या इम्फैटिक को देखें, द बॉय मेड ब्रेकफास्ट हिमसेल्फ। अब ये हम एम्फेसिस दे के कह रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं। अब देखें, दे लुक द सेम, पर इनकी जगह डिफरेंट है। यहाँ पर एम्फेसिस जब देंगे तो जिस नाउन के बाद एम्फेसिस देंगे, लिखना चाहेंगे, उसमें हम जोर दे के कहेंगे। इधर हम कहेंगे द बॉय मेड हिमसेल्फ ब्रेकफास्ट, यहाँ कहेंगे द बॉय मेड ब्रेकफास्ट हिमसेल्फ, ठीक है? तो यानी उसने खुद बनाया है, किसी और ने, बात वही है लेकिन स्ट्रेस के साथ है। ओके, अभी ये दो एग्जांपल्स आप देखें। अब ये एग्जांपल्स आपको किसकी लग रही हैं? ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक। व्हाट डू यू थिंक? ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक। इट इज इंटेंसिव और इम्फैटिक, कि उसने खुद पे किया, किसी और ने नहीं पे किया। तो हम जोर दे के कह रहे हैं। देखिए, अब ही के फौरन बाद एम्फेसिस आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट विल बी इम्फैटिक। अब ये भी देखें कैसे है। जॉर्ज हिमसेल्फ बॉट अ कॉपी ऑफ अमेरिकन टॉल टेल्स, यानी किसी और ने खरीद के नहीं दी हैं, खुद लेकर आया। सो अगेन इट विल बी, इट इज इम्फैटिक, ठीक है? इम्फैटिक का मतलब यही होगा कि इट इज़ फॉर एम्फेसिस, फॉर स्ट्रेस, और इसकी जगह मुख्तलिफ है। ये देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउंस टेक डिफरेंट पोजिशंस विद इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है रिफ्लेक्सिव, और इंटेंसिव या इम्फैटिक जो है, जिस जिस नाउन पे स्ट्रेस देना है उसके फौरन बाद आ जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट के पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं तो फौरन बाद आ जाएगा, और ही पे स्ट्रेस कर रहे हैं तो आई मीन वी आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि उसने खुद ही किया है, तो ही हिमसेल्फ पेड, जॉर्ज हिमसेल्फ बॉट, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस दैट वी हैव डन। अच्छा, अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव जैसे रिश्तेदार जिसको हम कहते हैं ना, उर्दू रिश्तेदार, ना ये भी रिश्तेदार होते हैं। कब पर होते किसके रिश्तेदार हैं, दैट वी हैव टू सी। दैट रिलेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। और हम इन्हें क्यों कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट, रेफर करते हैं पीछे किसी किसी चीज को और किसी बंदे को। दे आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेज अबाउट द सेम पर्सन। अच्छा, अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो हम ये देर आर एग्जाम्पल्स। अब ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है? ये देखिए, ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फंक्शन, द प्लेस दैट दे आर, क्योंकि अभी आगे जो दूसरी दूसरी काइंड्स आएंगी उसके अंदर भी यही वर्ड्स दोबारा दोबारा आएंगे, बट उनकी पोजिशन डिफरेंट होगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स चेक कीजिए। दे कॉट द विमेन हु स्पाइड फॉर नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, हु किसको रेफर कर रहा है, रिलेट किसको कर रहा है? विमेन को, ठीक है? विमेन को। सो ये जो रेफर बैक करता है ना, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि ये प्रोनाउन इसका रिश्तेदार है, ओके? इसका नहीं है, ये दे का नहीं है, दे कोई और है, वी डोंट नो। लेकिन विमेन के फौरन बाद इफ हु हैज कम, तो हु इज इमीडिएटली रेफरिंग बैक टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट, तो ये इसका रिश्तेदार है। सेम इज द केस हियर। दे विजिटेड द स्ट्रीट वेयर दे लिव्ड, वेयर दे लिव्ड देयर। अब ये देखें, वेयर रेफर्स टू स्ट्रीट, ये दे को नहीं कर रहा, ओके? तो इमीडिएटली पीछे जो नाउन आएगा उसको जो रेफर करेगा या उसके साथ जिसका लिंक होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इसलिए कि इट इज रिप्लेसिंग द नाउन विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हेयर। अच्छा,
आई डोंट नो द रीजन वाई शी डजेंट लाइक आइसक्रीम. अब वाई इस रीजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, और इसको रेफर कर रहा है. सो आप ये देख लें सारे. वैलेंटाइंस डे इज डे व्हेन, अब देखें टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ये देखें व्हेन इस डे के साथ इसका ताल्लुक है. अच्छा, इसी तरह से यू कैन सी द अदर्स. विच, आई लॉस्ट माई वॉलेट. विच यानी कि अगेन इसका मतलब है कि ये वॉलेट को रेफर कर रहा है, ठीक है. अच्छा, शी इज द वुमन. अच्छा, इसको ठीक कर लीजिएगा. ये है आई लॉस्ट माई वॉलेट विच माई मदर गेव मी, GAVE. अच्छा, शी इज द वुमन हुज सिस्टर. अब देखिए हुज सिस्टर, अब ये वुमन के साथ एसोसिएटेड है. हुज सिस्टर लिव्स इन लंडन. माइकल whom lives in Texas is an engineer. ये से होना चाहिए माइकल who lives in Texas. ये whom नहीं होना चाहिए, ये गलत है. सो इस इमेज में गलत है ये. सो होना ये चाहिए कि whom we know. इस वाले को आप काट दीजिए. यहाँ लिखिए माइकल whom we know. whom we know. तो तब ये इसको हम कहेंगे कि ये इट refers to an object. is an engineer. अच्छा, Austin was the place that I graduated from university. अब place, अब ये जो that है ये भी एक pronoun है जो कि वैसे तो ये conjunction का काम भी करते हैं ना. ये सारे देखिए conjunction भी हुए हैं. conjunction का मतलब है कि any word that links the two words or two clauses, ठीक है. तो यहाँ पर इसको अब देखें वही बात है कि मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, मतलब वो मल्टीपल फंक्शंस भी करते हैं. सो काइंडली हैव अ लुक एट ऑल दीज. तो ये जब इस तरीके से आ जाएंगे विद इन अ सेंटेंस और इनका एक रिश्ता बनेगा उनके साथ, दे रिलेट और रेफर बैक टू सम नाउन, इनको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बतानी है. ये जो मैंने लिखा है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट अगेन ये लैटिन के अंदर ही इसका ये इट मीन्स कि यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ. सी दिस, एंटीसीडेंट इज अ वर्ड दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड इन द कोर्स ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, सिंपल वर्ड्स में ये आप बेशक पढ़ लीजिएगा, बट सिंपल वर्ड्स में जो नाउन इस प्रोनाउन से इमीडिएटली पहले आता है, यानी इस केस में विमेन, ये एंटीसीडेंट है, यानी कि वो नाउन जो प्रोनाउन से पहले आता है और उसको रेफर करता है. जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं दे विजिटेड द स्ट्रीट. अब स्ट्रीट हो जाएगा एंटीसीडेंट, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत सारे एंटीसीडेंट्स होते हैं, एंटीसीडेंट के बगैर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता. आई डोंट नो द रीजन, अब रीजन विल बी एंटीसीडेंट. तो अगर हम यूं देखें कि यहाँ पर हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन वेयर एज विमेन इज एन एंटीसीडेंट, ठीक है. इसी तरह से स्ट्रीट, रीजन, डे, वॉलेट, वुमन, यहाँ पर माइकल को आप कह सकते हैं, एंड प्लेस, ठीक है. ये सारे एंटीसीडेंट्स हैं. अब एग्जाम्पल देखें. यहाँ पर ये इन सिंपल टर्म्स एन एंटीसीडेंट इज अ नाउन दैट कम्स बिफोर द यूज ऑफ द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है. इसके और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सिंपल इधर मैं आपको यही एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो इनको देखें कि जो इमीडिएटली पहले आ गया वो एंटीसीडेंट हो गया, राइट. सो इसको आप देखिएगा, हो सकता है फिर इन सब एग्जाम्पल्स को यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. तो सिंपल वर्ड्स में हमने क्या याद रखना है कि द एंटीसीडेंट इज द नाउन. ये प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउंस तो यहाँ पर हैं, लेकिन एंटीसीडेंट मीन्स एनी नाउन विच कम्स बिफोर अ प्रोनाउन, उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चंस. मैंने आपसे कहा था कि पीछे जो हु, हुम, ये सारे उसको आपने मिक्स नहीं करना. देखें, व्हेन दे कम फॉर मेकिंग क्वेश्चंस, तो फिर आप लोगों ने उसको कह देना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. कैसे? कि द वर्ड्स हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव. जैसे कि देखें, हु इज ही टॉकिंग टू, क्वेश्चन मार्क. अब हु रिफर्स टू सम
नाउन, तो इसको हम प्रोनाउन इसलिए कह देंगे क्योंकि इट इज़ रिप्लेसिंग हम नाउन और आगे क्वेश्चन मार्क है। हु आर दोज पीपल, देखिए यहाँ whom आर यू प्लेइंग विद, अब whom हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमने रेफर करना होता है, ठीक है। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है whom वाले में, और whom कोई और, लाइक whom आर यू प्लेइंग विद। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में whom खत्म हो गया, वो कहते हैं who आर यू प्लेइंग विद, ठीक है, और who आर यू टॉकिंग टू, इस तरह कहते हैं। वो तो होम कहते ही नहीं अब, ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है होम। और होम, और वो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश वाले जो है ना, वो आखिर में नहीं लगाते ये प्रपोजिशन, वो लगाते हैं विद whom आर यू प्लेइंग, इन्होंने ये गलत लगाया हुआ है। अगर ये ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करें तो दे शुड हैव रिटन विद whom आर यू प्लेइंग, और अमेरिकन वाले करते who आर यू प्लेइंग विद, ठीक है। So this is how they would have done. अच्छा, which of these bags is yours? Which do you prefer? अच्छा, whose is this umbrella? Whose are these gloves? अच्छा, जो भी ये वाले ये वैसे तो relative pronouns भी हैं, लेकिन अगर middle में आ जाएं sentence के या अंदर उसका हिस्सा बने, when they come in the beginning and they work as a question, so we call them as interrogative pronouns, right? अच्छा, what is also one of them? What is your dog's name? What are you talking about? What is the time? Okay? अब हर एक के बाद देखें ये क्वेश्चन मार्क है. So they are going to be called as these 1, 2, 3, 4, 5 as interrogative pronouns अगर इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क हो, और ये सेम जो हैं अगर ये मिडल में किसी को लिंक कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, then they will be called as relative pronouns. लेकिन एक बात याद रखिए, watch out, देखें I have written over here watch out, and watch out what? ये वही चीज जो मैंने आपको बताई exactly. देखें अब यहाँ पर which one would you prefer, अब यहाँ पर तो ये it is interrogative pronoun जो which है, लेकिन यहाँ देखें the students which had been unruly at first, अब देखें यहाँ पर relative pronoun बन गया कैसे, students को refer कर रहा है, तो यहाँ पर it will not be called as interrogative pronoun, वही वर्ड है, लेकिन आपने फंक्शन देखना है, उसकी जगह देखनी है, ठीक है। हु लाइक्स आइसक्रीम, अब यहाँ पे इट इज क्वेश्चन, लेकिन यहाँ देखें द बॉय हु लाइक्स आइसक्रीम इज हर सन, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसी तरह से हुम क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव, लेकिन अगर वो यूज हो रहा है रिलेशन के लिए तो देन इट विल बी रिलेटिव। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और भी आपको देखना होगा कि अगर हम कहते हैं कि विच शुड आई वेयर और इसके बाद नाउन नहीं है तो और क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर हम कहते हैं विच ड्रेस वुड लुक बेटर ऑन मी, देखिए विच के फौरन बाद ड्रेस आ गया, ड्रेस इज नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे नहीं होंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि इट इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट द ड्रेस, लेकिन यहाँ पर देर इज नो नाउन। देखिए काम दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बट आफ्टर दिस देर इज नो नाउन तो इट विल बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आफ्टर दिस देर इज अ नाउन तो इट विल बी एडजेक्टिव, तो यहाँ पे विच जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर होना चाहिए INTE, ये इंटरोगेटिव लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, अब देखें व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है पर यहाँ है व्हाट फूड वुड यू लाइक मी टू कुक, यहाँ पर इट इज नॉट प्रोनाउन, हेयर इट इज एडजेक्टिव, ठीक है। और फूड यहाँ पे चूंकि नाउन है तो नाउन और प्रोनाउन अगर इकट्ठा हो जाएं तो वो गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए मॉडर्न ग्रामेरियंस जो है ना दे टेल अस कि भाई इनको आप जिस तरह वो पीछे मैंने आपको बताया पोजेसिव प्रोनाउन का कि कोई पोजेसिव प्रोनाउन कोई चीज़ नहीं होती, उसको डिटर्मिनर कहें आप, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू बोथ दीज टर्म्स ताकि आपको पता हो, तो प्लीज़ मेक अ डिफरेंस कि किस तरह से हम जब उसको when we put it at when we place it somewhere as a question तो इट विल बिकम इंट्रोगेटिव, लेकिन उसके बाद अगर नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, अदरवाइज इट विल बी प्रोनाउन। तो इसको इन सारी एग्जाम्पल्स को आप लिखिए।
so that you should understand what I mean. So watch out for this. यहाँ पे confusion हो जाती है. So already फर्क यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है कि हम इन दोनों को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. Okay. Right. So now the home task is that you have to note down all the examples given on slides in your notebook ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आ जाए और फिर जब एक्सरसाइजेस हम आप लोग करेंगे तो you will be in a position to have some guidance. ठीक है? So this is what it is. So inshallah in the next lecture I'm going to tell you in the part 3 of lecture number 2 adjective and its kinds. फिर हम adjectives के बारे में बात करेंगे. So from my side it's over. See you in the next. Allah Hafiz.